Welcome everyone for the next lecture. So in this lecture, we'll be starting with a new type of machine that is pushdown automata. Okay. So last lecture तक हमने देखा था context free grammar, then context free languages, right? Then we came to simplification of CFG, CNF. Okay. So now let's see what is pushdown automata. So हम formally start करेंगे with the definition of pushdown automata. So pushdown automata, like we have seen for regular languages, we have a machine that is finite automata. So finite automata is a machine that can recognize regular languages. Similarly, for context-free languages, these can be recognized by a machine that is pushdown automata. ठीक है. और अगर मैं in terms of power बात करूं, so जो हमारी pushdown automata है, that is more powerful as compared to finite automata. So in terms of power, if we are saying in terms of power, it is having more capabilities than finite automata. तो उसका meaning क्या है? It can recognize a wider set of languages as compared to finite automata. Now, what exactly is finite automata? So, as we have seen in the what exactly is pushdown automata? As we have seen in the case of finite automata, so there was a difficulty in remembering the things, right? Now, what we can do is we can define a pushdown automata is nothing but finite automata, and there is a memory that is a stack. Okay. So everything would be same, like in case of PDA, we'll be having state transitions would be there. There would be a control unit, but along with that, along with the whole finite state machine, we'll have a stack. ठीक है. Now stack से हमें क्या help मिलेगी कि with the help of stack we can remember the things. Okay. तो ये हमारा आर्किटेक्चर है. So we are having a input tape. ठीक है. और इनपुट टेप से देयर विल बी अ रीड हेड जो जहां से हम वन बाय वन सिंबल्स को रीड करेंगे. देन देयर इज अ फाइनाइट स्टेट कंट्रोल यूनिट which will be responsible for controlling the state, controlling the transition between the state, right? And then there is a stack. अब स्टैक में जब हम फॉर्मली डिफाइन करेंगे सो विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट यू कैन रिमेंबर this thing, that stack will have a special symbol that will act like a marker. Okay. Now in case of PDA, what we can have is there can be, so once we are reading something, once this finite state control is reading some input from the input tape, so there can be three possibilities with the stack, right? तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे स्टैक में आप पुश कर सकते हो. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, आप पॉप कर सकते हो. और तीसरी एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्शन होता है, दैट इज स्किप. स्किप का मीनिंग क्या है कि वी विल नॉट बी मेकिंग एनी चेंजेस टू द स्टैक. तो स्टैक वही रहेगा, स्टैक का टॉप चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप पुश करते हो या पॉप करते हो तो स्टैक का टॉप चेंज होता है, बट in case of a skip, the top of the stack would remain same. Okay. Then there is one more thing that we should remember is that this epsilon can also be consumed. ये चीज हमें याद रखनी है. We can consume the input symbol from the input tape as well as we can consume epsilon. Epsilon का मीनिंग क्या होता है, like we are actually not consuming anything from the input stream. Okay. अब अगर हम पीडीए को फॉर्मली डिफाइन करें तो पुश जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा था, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास 5 टपल्स थे. तो वो 5 टपल तो रहने ही वाले हैं, उनके अलावा 2 एडिशनल टपल आ जाएंगे फॉर द स्टैक. सो वी वर हैविंग क्यू, दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा दैट इज इनपुट अल्फाबेट, देन दिस इज अ न्यू सिंबल टाउ. टाउ भी बोलते हैं, अपर केस गामा भी बोलते हैं. तो बेसिकली दिस tau will be responsible for you know
that is actually a set of symbols that we can push onto the stack. तो इसे हम बोलते हैं स्टैक अल्फाबेट. ठीक है. उसके बाद डेल्टा, दैट इज द ट्रांजिशन फंक्शन, वो भी हम देखेंगे ट्रांजिशन फंक्शन पीडीए का क्या होता है. क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, एंड जेड नोट अभी मैंने बताया आपको, दैट इज अ स्पेशल मार्कर which will actually be used when we'll check the condition for the emptiness of the stack, right. ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो we'll have a state, current state, capital Q is current state, then we'll consume something from the input tab. तो इनपुट टेप से कुछ कंज्यूम करेंगे, उसके साथ साथ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम कुछ भी कंज्यूम ना करें. सो इन दैट केस we'll actually consume the epsilon. So this is similar to epsilon and fa. Then this is what this tau is actually indicating the top of the stack. ओके. तो ट्रांजिशन से पहले हमारा जो स्टैक है उसका टॉप क्या था, एंड देन हियर वी आर हैविंग क्यू, दैट इज द न्यू स्टेट, एंड दिस इज टाउ स्टार. टाउ स्टार का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो पुश या पॉप, तो डेफिनेटली जो स्टैक का टॉप है वो चेंज होगा. सो दैट टाउ स्टार इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक. तो पुश और पॉप में जो स्टैक का टॉप है वो चेंज होता है ऑब्वियसली, एंड व्हेन वी आर डूइंग द स्किप ऑपरेशन द टॉप विल रिमेन द सेम. स्टैक क्यों प्रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली स्टैक जो है दैट इज अ जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर. तो स्टैक को वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई एनी एनी स्पेसिफिक एड्रेस, तो हमें सिर्फ टॉप के थ्रू हम एक्सेस करते हैं. सो दैट इज व्हाई स्टैक इज काइंड ऑफ बेनिफिशियल. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, दिस इज जस्ट सिमिलर टू योर फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा हम देते थे डीएफए एनएफए हम डिजाइन करते थे, उसे रिप्रेजेंट करते थे, सेम चीज है अगर आप ट्रांजिशन ग्राफ की बात करते हैं. सिर्फ डिफरेंस कहाँ आने वाला है, डिफरेंस आता है, यस, डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पे, हाउ वी आर एक्चुअली लेबलिंग दीज आर्क. देखो यहाँ पे क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट, सेल्फ लूप हो सकता है, और या फिर आप क्यू नोट से क्यू वन पे जा सकते हो, है ना. देयर कैन बी ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू नोट टू क्यू वन, अगेन वी मे हैव अ सेल्फ लूप ऑन क्यू वन. तो वो हम देखेंगे ये सब कैसे आते हैं बेसिकली, मतलब हाउ विल बी चेंजिंग द स्टेट, दैट विल सी इन द डिजाइनिंग पार्ट. फॉर द टाइम बीइंग अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, तो अगर आप इसे कैसे समझोगे, इसका मीनिंग क्या है कि जीरो दैट इज व्हाट, दैट इज द इनपुट सिंबल, जीरो इज द इनपुट सिंबल, यानी वो इनपुट सिंबल जो आपने इनपुट टेप से रीड किया है. जेड नोट इज व्हाट, दैट इज द प्रीवियस, या आप कह सकते हो करंट टॉप ऑफ स्टैक. और उसके बाद मैंने लिखा है जीरो जेड नोट. तो जीरो जेड नोट का मतलब क्या है, न्यू टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है. अब ये जीरो जेड नोट लिखने का मतलब क्या है, अब आप देखो अगर मेरे पास स्टैक है और उसपे पहले से जेड नोट है, और अगर मैं जीरो पुश करता हूँ, राइट, तो क्या होगा, दिस विल, दैट इज व्हाई ये बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि दिस जीरो हैज बीन पुश्ड ओवर जेड नोट, राइट. तो ऑब्वियसली जीरो इज द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक. जीरो जेड नोट हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसमें न्यू टॉप क्या होगा, आपका जीरो होगा. ठीक है. और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन कोमा वन स्लैश वन, इसका मीनिंग क्या है, एप्सिलॉन मतलब वी हैव नॉट कंज्यूम्ड एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट टेप, और पहले भी वन लिखा है और बाद में भी वन लिखा है. इसका मतलब ये हमारा करंट टॉप ऑफ द स्टैक है, और न्यू टॉप ऑफ द स्टैक भी हमारा वन ही है. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो चेंज नहीं हुआ है. तो डेफिनेटली ये ऑपरेशन जो है, अगर टॉप चेंज नहीं होता है तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्किप. यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, पहले जेड नोट था, फिर हमने जीरो को जेड नोट के ऊपर पुश किया है. सो दैट इज पुश ऑपरेशन. तीसरा ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया था दैट वाज पॉप, राइट. तो पॉप में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो ये इंडिकेट कर रहा है पॉप ऑपरेशन. इसे अगर हम इंटरप्रेट करें तो कैसे करेंगे, जीरो तो हमारा इनपुट सिंबल है, करंट टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है, करंट टॉप ऑफ द स्टैक,
और फिर अगर आप न्यू टॉप ऑफ द स्टैक पे देखो तो वहां पे एप्सिलॉन लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो था ये आपने पॉप कर लिया है, राइट। नाउ एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों लिखा है। हो सकता है जीरो को अगर हम पॉप कर रहे हैं तो जीरो के बाद भी कुछ और सिंबल्स हो, बट हमें नहीं पता है कि क्या सिंबल्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट एज एप्सिलॉन। सो दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। जो दूसरा हमारा पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है पीडीए का, जैसे दैट इज आईडी, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो आईडी कैसे लिखते हैं? आईडी लिखना इज अगेन वेरी सिंपल। सी व्हाट वी आर हैविंग इज आईडी, मतलब वी विल बी राइटिंग द ट्रांजिशन। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है? ट्रांजिशन। तो अगर ट्रांजिशन आईडीज हमें लिखनी होंगी तो हम कैसे लिखेंगे? सो लेट अस राइट वन आईडी। सो आई विल राइट डेल्टा, दैट इज द ट्रांजिशन फंक्शन, करंट स्टेट क्यू नोट, ठीक है। और क्यू नोट से लेट सपोज मैं इनपुट टेप से मैंने रीड किया है जीरो, और मेरा करंट टॉप ऑफ द स्टैक है लेट सपोज जेड नोट। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज वेयर आई विल बी गोइंग। सो क्यू नोट से स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही? तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से देखूं तो स्टेट चेंज नहीं हुई है, सो इट विल रिमेन एज क्यू नोट। अब देखो जीरो तो कंज्यूम हो गया है ना, इनपुट सिंबल कंज्यूम हो गया, तो डेफिनेटली इनपुट सिंबल को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या लिखना होगा? न्यू टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे अगर मैं इस जीरो को इस जेड नोट के ऊपर पुश कर देता हूँ, सो इट विल बिकम जीरो जेड नोट। सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट स्टेट, दिस इज व्हाट न्यू टॉप ऑफ द स्टैक, current top of the stack, input symbol that we have read from the input alphabet, sorry, input tape, and Q node is the current state. So this is how we write IDs, that is instantaneous description. ठीक है, तो ये IDs लिखी हुई है। Now this is again an important thing because what I want is we'll start from the next lecture, we'll start with the PDA designing. तो अभी वो बेसिक सी चीजें हम समझ रहे हैं। इसमें एक आता है एक्सेप्टेंस। This is very important because this concept is actually different from the finite automata. क्योंकि finite automata में अगर आपको याद हो तो आप acceptance कब कहते थे कि अगर हम जो हमारा इनपुट टेप है वहां से हम अपनी स्ट्रिंग को कंज्यूम कर लें, और आफ्टर कंजम्पशन ऑफ all the symbols from the input tape, we should be able to reach some of the final state. अगर हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो व्हाट वी से इज यस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। सिंपल था। पीडीए के अंदर भी वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस तो हमारा ऐसे ही है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में होता था, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, या कह सकते हो एक्सेप्टेंस बाय एक्सेप्टिंग स्टेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, है ना। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, विल बी डिस्कसिंग दैट। एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग है डब्लू, ऑब्वियसली डब्लू हमारी किससे बिलोंग करेगी? सिग्मा स्टार से। डब्लू इज द स्ट्रिंग, सो डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ इनपुट सिंबल्स, इनपुट अल्फाबेट, so that is why we are writing w belongs to sigma star. Now what we are saying is कि अगर हम q नोट इज द इनिशियल स्टेट, अगर हम इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं, w वो स्ट्रिंग है जो हमें एक्सेप्ट करानी है। इनिशियली हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, उसमें सिर्फ क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जो z नोट होता है वो होगा। And after doing any number of transition, we are if we are able to reach some of the final state f, then definitely we'll say कि this particular string is accepted. तो अगर हमारा जो इनपुट सिंबल्स हैं वो सब कंज्यूम हो गए और हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए। सो दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। दूसरा होता है हमारा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। सी अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, जैसे आप देखो सपोज इनिशियली आपका जेड नोट था, ठीक है। यहाँ से आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स से वी आर हैविंग ए बी बी समथिंग लाइक दिस, राइट।
अब मैंने इस ए को कंज्यूम किया, फिर कुछ ट्रांजिशन हुआ, फिर इस बी को कंज्यूम किया, देन अगेन देयर इज सम ट्रांजिशन, तीसरे बी पे फिर कोई ट्रांजिशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली जेड नोट होगा, हो सकता है उसके बाद हम कुछ पुश करें, लेट्स से मैंने ए पुश कर दिया, बी पुश कर दिया, उसके बाद मैंने बी को पॉप कर लिया, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसे समझना पड़ेगा कि अगर हमारे सारे इनपुट सिंबल कंज्यूम हो गए और मैं किसी क्यू एफ पे पहुंच गया, और क्यू एफ जो है वो मेरी फाइनल स्टेट है, गेटिंग माई पॉइंट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्टैक में क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट सिंबल कंज्यूम हो जाए और मैं किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊं, तो दैट इन दैट केस दिस स्ट्रिंग ए बी बी इज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या कह रहा है कि आपको किसी फाइनल स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सारे इनपुट सिंबल कंज्यूम हो जाए और उसके साथ साथ जो आपका स्टैक है वो भी कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, देन इट इज एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्टी स्टैक। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या था, अल्फा, हमने क्या लिखा है, टॉप ऑफ द स्टैक इज अल्फा, दैट मींस वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि स्टैक के टॉप पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ टाउ सिंबल्स। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू एक्सेप्ट करानी है, दैट ऑब्वियसली बिलोंग्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, सो व्हाट वी आर सेइंग इज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नोट, इनिशियल स्टेट डब्ल्यू इज द स्ट्रिंग जो हमें चेक करनी है, और इनिशियली स्टैक हमारा एम्प्टी है तो उसमें जेड नोट है, एंड आफ्टर हैविंग एनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन वी आर एबल टू रीच सम क्यू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक कर रहे हैं, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड कि हम किस स्टेट पे हैं, स्टेट से हम कंसर्न नहीं है, हम किस चीज से कंसर्न है कि हमारा जो इनपुट टेप का जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके सारे सिंबल कंज्यूम हो चुके हैं, दैट मींस वहां पे क्या है, एप्सिलॉन बचा है, इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, और दूसरा हमारा जो स्टैक है वो भी कंप्लीटली एम्प्टी है, उसमें जेड नोट भी नहीं है। सो इफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर देन वील से दिस इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ओके, सो वी कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये था बेसिक, ये फंडामेंटल्स थे पीडीए के। पीडीए के 7 टपल्स होते हैं, पीडीए में 2 तरह का एक्सेप्टेंस होता है, राइट। और यस वी डू हैव डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। सेम कॉन्सेप्ट है लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिज्म क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है, राइट। एक चीज जो नई है दैट इज कि in case of finite automata we can convert any non-deterministic finite automata into equivalent deterministic finite automata, right. So every NFA has a equivalent DFA, but this is not true for the PDA. So you cannot convert every non-deterministic PDA into deterministic PDA. Even we cannot design a deterministic PDA for every context free language. तो हम वो एग्जाम्पल भी देखेंगे जहां पे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना सकते हैं लेकिन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं बना सकते, राइट। दैट इज व्हाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो अगर मैं पावर की बात करता हूँ एनपीडीए की, so obviously it is more powerful than deterministic PDA, right. So this was not the case with the finite automata. In case of finite automata, NFA and DFA are equivalent in terms of power, but here non-deterministic is obviously more power, right. So we'll start the designing from the next lecture. तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी हो गया है क्योंकि सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस करनी थी। ओके, सो थैंक यू सो मच।